नेक्स्ट रीडिंग करो रेफरेंस इलेक्ट्रोड रेफरेंस रेफरेंस इलेक्ट्रोड REFENCE रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1 इन अ galvanic cell oxidation and reduction occur simultaneously दिखा and the cell potential that is cell voltage and the cell potential that is cell voltage can be measured experimentally. Next point. Next point. For the measurement of potential, comma, two electrodes need to be combined together but in case of comma if potential of one of the electrode ब्रैकेट में लिखना out of 2 ब्रैकेट क्लोज इसके बाद लिखो in a galvanic cell is 0 ब्रैकेट के बाद लिखो in a galvanic cell is 0 नेक्स्ट लाइन में लिखो the cell potential is the algebraic sum of the cell potential is the algebraic sum of electrode potential लिखा नेक्स्ट लाइन में लिखो in order to solve the problem related to the zero potential of the cell reference electrode is used देखा नेक्स्ट टाइम में लिखना रेफरेंस इलेक्ट्रोड आर दोज क्या लिखा reference electrodes are those whose potential is arbitrarily AR, BI, TRA
RILY arbitrarily taken as 0. Taken as 0. लिखा? Next point में लिखना. The most common reference electrodes are the most common reference electrodes are number 1 standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode लिखा? Yes. comma Calmel electrode CALOMEL Calmel electrode लिखा? Yes. comma silver chloride silver chloride comma glass electrode लिखा? नंबर 1 डालो या नेक्स्ट नंबर डालो. लिखो हेडिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शॉर्टकट लिख लो SHE. लिखा SHE. हाँ, ये जो सेल अभी हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सेल नहीं इलेक्ट्रोड, इसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इसमें हमें जितना भी पॉइंट पढ़ना है उसका इंडेक्स बना लेते हैं. ठीक है, उससे आसान हो जाता है. देखो एक इंडेक्स जैसा लिखो शॉर्ट में. पहला कंस्ट्रक्शन विद डायग्राम. कंस्ट्रक्शन विद डायग्राम. Second, cell reaction. Third, cell representation. Fourth, application of SHE. Application of SHE. Fifth, difficulties in setting SHE. Difficulty in setting SHE. Next, representation of SHE by using Nernst equation. Representation of SHE by using Nernst equation. लिखा? पहला नंबर पे डालो. कंस्ट्रक्शन बराबर है. ये लिख लो, फिर मैं स्टार्टिंग में समझाती हूँ. कंस्ट्रक्शन में लिखो पॉइंट नंबर 1. SHE consists of a platinum plate. देखो प्लैटिनम की प्लेट है, कितना महंगा होगा. consists of platinum plate coated with platinum black. Coated with platinum black. लिखा? Coated with platinum black, which is used as electrode.
लिखा। नेक्स्ट लाइन में लिखना this plate is connected to the this plate is connected to the this plate is connected to the external circuit through sealed narrow glass tube SEALED sealed narrow glass tube that containing mercury. Next line में लिखना the whole assembly is surrounded by glass jacket लिखा। ग्लास जैकेट ब्रैकेट में लिखना आउटर जैकेट that having one inlet next point the platinum electrode is immersed in 1 molar H plus ion solution. 1 molar H plus ion solution. लिखा 1 molar H plus ion solution. Next point, the solution is kept saturated. The solution is kept saturated by dissolving hydrogen gas under 1 atm pressure through the inlet of the glass jacket. As shown in the figure below. देखा इसके बाद लिखो platinum does not take part in the electrode reaction. Platinum does not take part. नहीं मैं जगह नहीं सुना मैं बता दूँ. Platinum does not take part in the electrode reaction. देखा it is inert electrode. And only provide platform for the electron transfer. देखा अभी आप लोगों को इधर ध्यान देना है. देखो आपको पूरे सेल का कौन सा सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल गिनना है या उसको हम बोलते हैं वोल्टेज गिनना है. तो इसके लिए आप क्या करते हो जो एनोड है उसका पोटेंशियल प्लस जो कैथोड है उसका पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल प्लस करते हो तब जाके पूरे सेल का पोटेंशियल मिलता है. ये एनोड है मेरे लेफ्ट साइड में. एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन और राइट साइड में कौन है कैथोड कौन सी रिएक्शन होती है रिडक्शन. एनोड पे जो हो रही रिएक्शन हो कैथोड पे जो हो रही रिएक्शन हो दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगा और उसका वोल्टेज निकाल सकते हो सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो.
बट हम लोगों को स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो आपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड करके रीडिंग डाली ना, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये तो ऐसे काम चालू था ना आसानी से, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों में से एक ही सेल दिया है, सिर्फ कैथोड दिया है या फिर सिर्फ एनोड दिया है, अभी कैसे निकालोगे सेल पोटेंशियल? सेल पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्लस करना पड़ता है, दोनों, तब जाके सेल का निकलता है पोटेंशियल, समझा? या दोनों में से एक जीरो भी रहा तो टोटल देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, शॉर्टकट में लिखती हूँ, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ एनोड पे होने वाला पोटेंशियल या एनोड की रिएक्शन प्लस कैथोड की रिएक्शन, बराबर? पर इनमें से एक इलेक्ट्रोड गायब है, अब निकाल पाओगे क्या? ऐसे केस में हम लोगों को इसको सपोर्ट करने के एक इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, या फिर ये दिया है ये नहीं है तो इसको सपोर्ट करने के लिए इधर लेना पड़ेगा, तो वो सपोर्ट करेगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हेल्प करता है उन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए जिसमें सेल कंप्लीट नहीं है, एक तो एनोड दिया है तो कैथोड नहीं, कैथोड दिया तो एनोड, दोनों दिए रहते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती, समझ में आया? एक गायब है तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो हमको उसको सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन ये है कि हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो होता है जिसका पोटेंशियल पहले से जीरो सेट रहता है, ठीक है? अगर यहाँ पे एनोड है, क्या एनोड है? लेफ्ट साइड तो एनोड है ना, यस, और इसके बाजू में कैथोड दिया ही नहीं है, तो कैथोड का रोल प्ले करेगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड, समझा क्या? यस, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का रोल प्ले करेगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड, समझा? और इसका पोटेंशियल जो है, पूरे सेल का पोटेंशियल मुझे निकालना है, तो इसका पोटेंशियल एनोड पे जो हो रहा है उसका पोटेंशियल प्लस कैथोड पे जो हो रहा है उसका पोटेंशियल, बराबर है? तो एनोड का पोटेंशियल तो आप गिन लोगे मीटर से, वोल्ट मीटर से, इसका क्या करोगे? इसको ऑलरेडी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होने की वजह से, ये कौन है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड, बराबर है? यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैथोड का रोल प्ले कर रहा है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब ये रॉड, इलेक्ट्रोड मतलब रॉड, इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल समझा था मैंने? जब भी कोई रॉड उसके सॉल्यूशन में डूबा रहता है तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है, समझ में आया क्या? यहाँ पे सॉल्यूशन में आयन कम, रॉड पे ज़्यादा, इस रॉड पे आयन ज़्यादा, सॉल्यूशन पे कम, ये आयन का जो कम ज़्यादा है ना रॉड और सॉल्यूशन के बीच में, वो फर्क मतलब कि पोटेंशियल होता है, समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? तो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल ऑलरेडी सेट किया है जीरो, आर्बिट्रेरली टेकन है जीरो, ऐसा वर्ड आपने लिखा है, समझ में आया? जहाँ पे एनोड कैथोड दोनों दिया है, सेल पोटेंशियल इजीली निकाल सकते हैं, एनोड का पोटेंशियल प्लस कैथोड का पोटेंशियल, ठीक है? और जहाँ पे कोई तो भी एक इलेक्ट्रोड अगर मिसिंग है, एनोड नहीं है कैथोड दिया है, कैथोड नहीं है एनोड, जो भी है एक मिसिंग है, तो ऐसे केस में आप लोगों को एनोड दिया है कैथोड मिसिंग है तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैथोड का रोल प्ले करेगा, और कैथोड दिया है एनोड नहीं दिया है तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड एनोड का रोल प्ले करेगा, समझ में आया? और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जीरो रहेगा हमेशा, क्या रहेगा? जीरो, समझा? 0.000 V वोल्ट, समझ में आया? रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो कई प्रकार के होते हैं, उसमें से हम लोगों ने मतलब मैंने लिस्ट आउट कर लेते, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, कैल्विन इलेक्ट्रोड है, समझ में आया? तो ऐसे अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसमें से आपके सिलेबस में कौन सा दिया है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे शॉर्टकट में हम SHE कहते हैं, स्टैंडर्ड S हाइड्रोजन H इलेक्ट्रोड E। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिखने में कैसा होता है, उसमें क्या क्या मतलब मटेरियल का यूज़ किया है? तो सबसे पहले चीज, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड अगर आपको बनाना है तो आप लोगों को किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले आपको एक प्लैटिनम की प्लेट लेनी पड़ेगी, यह प्लैटिनम ही क्यों? क्योंकि प्लैटिनम एक इनर्ट मेटल है। अरे जो गोल्ड सिल्वर वगैरह आप पहनते हो वो इनर्ट है ना, इनर्ट है तभी पहनते हो ना। तो गोल्ड आपने खरीदा और वो पानी में डालते ही डिजॉल्व होने लगा, रिएक्ट हो रहा है, तो वो गोल्ड काम का है क्या? मेटल ऐसा मेटल लेना है जो रिएक्शन में सिर्फ मदद करे, रिएक्शन में इंटरफेयर ना करे, समझ में आया? तो आपको प्लैटिनम प्लेट लेनी है और प्लैटिनम प्लेट को कोट करना है प्लैटिनम ब्लैक से, ठीक है? ये आपको मिल जाएगा रेडीमेड, ठीक है?
और उसके बाद इसको वायरिंग लगानी है। ये वायर को सील करना है, एक छोटी सी ग्लास ट्यूब से सील किया। और सीलिंग के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा मर्क्यूरी लेना है। आया समझ में? सीलिंग के लिए आपको क्या लेना है? थोड़ी मर्क्यूरी। आप इनके बीच में गैप रख सकते हो, नहीं तो ये आपको सूखेगा। ये आप लोगों ने मर्क्यूरी लिया जिसमें वायर सील हो गए और ये नीचे से वायर निकला और ये आपकी प्लेटिनम प्लेट कोटेड विद द प्लेटिनम प्लेट। समझा? ये प्लेटिनम प्लेट। और ये पूरी असेंबली आपको एक ग्लास जैकेट में डाली है। उस ग्लास जैकेट को एक इनलेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इनलेट होनी चाहिए। तो ग्लास जैकेट जो शेप का यूज किया है वही हम निकालेंगे। ये ग्लास जैकेट है आपका। ये ग्लास जैकेट लिया, समझा? और इस ग्लास जैकेट को यहाँ से इनलेट दिया। इनलेट का मतलब होता है कोई चीज अंदर आएगी बाहर से। आउटलेट का मतलब होता है बाहर जाएगी। असेंबली से बाहर जा रही है तो आउटलेट, बाहर से अंदर आ गई तो इनलेट। तो ये ग्लास जैकेट ले लिया, समझा? अगर पूरा का पूरा आपको डिप करना है एक सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन में ये प्लैटिनम प्लेट भी होनी चाहिए। समझ में आया? इधर ध्यान दो। सॉल्यूशन में प्लैटिनम प्लेट क्या होनी चाहिए? डीप होनी चाहिए। वही डीप, समझा? ये क्या लिया मैंने? ये मैंने लिया 1 मोलर H+ आयन वाला सॉल्यूशन। आप H+ को ले सकते हो, HCl ले सकते हो, है ना? H+ आयन HCl ले सकते हो। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो अभी आप लोग ध्यान दो, जैसे आपने ये पूरी असेंबली डिप किया यहाँ पे और ये इनलेट किस चीज के लिए? यहाँ से आप सॉल्यूशन को सैचुरेटेड रखने के लिए हाइड्रोजन गैस बबल करोगे। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस आएगी, इसके अंदर प्लेट के ऊपर आएगी, समझा? और उसके बीच में और H+ आयन के बीच में रिएक्शन होगी। समझ में आया? रिएक्शन क्या होगी हम रिएक्शन वाले पोर्शन में देखेंगे। पहले तो हम असेंबली देख लेते हैं। असेंबली में आपको एक प्लैटिनम की प्लेट लेनी है, उसको कोट करना है प्लैटिनम ब्लैक से। ठीक है, उसको वायरिंग पूरी लगाना है अच्छी खासी और ऊपर से वायर को सील करना है, तो मिलना नहीं चाहिए, इसलिए सील कर दिया टूब में, समझा? फिक्स कर दिया यहाँ पे मर्क्यूरी से और वो वायरिंग बाहर निकल गई। आपको जिससे भी बैटरी से कनेक्ट करना है तो ये वायर आप यूज़ कर सकते हो। वायर छोड़ दिया ना वहाँ से, अरे बैटरी से कनेक्ट करने के लिए। हाँ, समझ में आया? अगर ये वायर पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे तो ये कैथोड हो जाएगा, है ना? और अगर नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ोगे तो एनोड हो जाएगा। नेगेटिव मतलब एनोड। समझ में आया? और एक इनलेट दी है जिससे आपको हाइड्रोजन गैस बबल करना है। हाइड्रोजन गैस हमेशा ध्यान रखना 1 एटमॉस्फेयर पे होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए गैस का? 1 atm प्रेशर। हाइड्रोजन गैस का प्रेशर होना चाहिए 1 atm। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलर। समझ में आया क्या? ठीक है। और यही सेट नहीं होते, ये डिफिकल्टी है एक्चुअली एसओजी की। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से कम ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन गैस बबल करे तो 1 atm प्रेशर मेंटेन नहीं होता। तो इसलिए डिफिकल्टीज जो हमने एक टॉपिक डाला है उसमें हम ये शेयर करेंगे बातें। ठीक है, तो ये है आपकी असेंबली। अभी सेल की रिएक्शन, सेल की रिएक्शन में सबसे पहले आप लोग इधर ध्यान दो। H+ आयन जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, समझा? ठीक है। और यहाँ पे कौन सी गैस है इसकी? ये H+ आयन है और उधर से कौन सी गैस आ रही है? हाइड्रोजन गैस आ रही है ना H+ में, इसलिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ हाइड्रोजन गैस, समझा? जिसका प्रेशर कितना है? 1 atm। समझ में आया? और ये दोनों भी इसके ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं, ये प्लैटिनम प्लेट के ऊपर, ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हाइड्रोजन गैस आने वाली और ये सॉल्यूशन के H+ आयन जो भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन है वो करते हैं। तो ये प्लैटिनम प्लेट, प्लैटिनम प्लेट इज जस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म फॉर द रिएक्शन बिटवीन H+ आयन ऑफ द सॉल्यूशन एंड H2 गैस which is bubbled from the inlet of the outer glass jar। समझ में आया क्या? ठीक है, ये है आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन। ये पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं बताया क्योंकि ये एनोड कैथोड दोनों का रोल प्ले करता है। डिपेंड करता है कि आपके गैल्वेनिक सेल में एनोड दिया है, कैथोड गायब है,
कि कैथोड भी है इसको एनोड गायब है, क्या गायब है उसकी जगह इसको सेट करो, क्योंकि पूरे सेल का पोटेंशियल तो दोनों रहेंगे तभी होता ना, एक गायब है एक दिया, तो जो गायब है उसकी जगह आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड SHE का यूज करो। समझ में आया मैंने क्या बोला? और सेल की रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद आपने क्या एडिंग कर लिए? सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में आप लोग देखो कैसे होता है। सेल रिएक्शन में ये जो H+ आयन है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और कन्वर्ट हो जाता है इसमें H2 गैस, H2 गैस में कन्वर्ट होता है। नहीं, यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बात नहीं है, हो जो रही है रिएक्शन सेल में वो हम देखेंगे। तो ये आप मुझे बताओ कितने H2 गैस में कितने हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पे तो एक ही H+ है तो ट्वाइस, और यहाँ पे भी ट्वाइस। समझ में आया? इस प्रकार से ये आपकी सेल की रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोगों ने फिर कहाँ तक पहुँचे हो? कंस्ट्रक्शन लिख लिया था ना? डायग्राम के लिए 7-8 लाइन छोड़ दो, अच्छे से डायग्राम बनाना है। वायरिंग के लिए जो वायर यूज किया जाता है इधर कनेक्शन के लिए वो कॉपर वायर का पता है ना, तो भी लिखना पड़ेगा। जो करंट फ्लो है इसके अंदर वायर कौन से? कॉपर वायर। समझा क्या? कॉपर वायर छोड़ा गया है बैटरी को कनेक्ट करने के लिए। चलो लिखो, डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो। और कंस्ट्रक्शन के बाद देखो आप लोग क्या था अपना इंडेक्स में सेल रिएक्शन, इसमें लिखो प्लैटिनम प्लेट के ऊपर प्लैटिनम ब्लैक इसलिए लिया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये एक लाइन लिखेंगे। चलो लिखो, द प्लैटिनम ब्लैक is capable of adsorbing AD। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में फर्क समझता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है पूरा अंदर जाना, और जैसे स्पंज लिया पानी के ऊपर रखा तो पानी पूरा स्पंज के अंदर, और एडजॉर्प्शन मतलब सिर्फ सरफेस पे रहता है। जैसे आप लोग बेंच पे बैठे हो तो आप एडजॉर्ब हो, सिर्फ सरफेस का यूज किया। समझ में आया? द प्लैटिनम ब्लैक कैपेबल ऑफ एडजॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ H2 गैस, large quantity of H2 gas, दिखा, comma, allow the change from gases H2 into ionic form, and vice versa, देखा? मतलब आयन का गैस भी बन सकता है और गैस का आयन भी बन सकता है। समझा? गैस का देखो, आयन का गैस बना तो एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन, और अगर गैस का आयन बनेगा तो लॉस करेगा, तो लॉस गेन दोनों भी हो सकता है इसके साथ। इसलिए तो ये एनोड कैथोड कुछ भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि उसको जिसके साथ जोड़ा है वो कौन है। समझा क्या? चलो ये रिएक्शन लिखो, वन मोलर 1 ATM क्या हुआ? इन लोगों को थोड़ा आवाज कम करो क्या? मैम ये जो रिएक्शन है वो सेल रिएक्शन में लिखना है? हाँ, सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रोड, ये सेल थोड़ी है तो इलेक्ट्रोड पढ़ रहे ना। सेल मतलब दोनों होना चाहिए, एनोड कैथोड, और इसमें भी ये एनोड है कि कैथोड कहीं नहीं हुआ है, तो तब फिक्स होगा जब किसके साथ कनेक्ट करते हैं। समझा? हो गया? उसके बाद क्या है देखो, सेल रिप्रेजेंटेशन। चलो वो सेल रिप्रेजेंट करके दिया है ऊपर।
सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया क्या? क्या है नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन ऑफ SHE। तो रेडी करो। देखो पहला SHE is used as primary reference electrode SHE is used as primary reference electrode to determine the standard potential of other electrode लिखा, standard potential of other electrode. Next, for example, to determine the standard potential of Zn solid dipping its salt solution Zn2 plus। एक्चुअली Zn है, पर Zn में से हमें Zn का काम है आयन का, इसलिए हमने Zn सॉलिड, वो इलेक्ट्रोड है ना उधर का, घर में पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, वो इलेक्ट्रोड है और वो डीप है उसके सॉल्यूशन में, समझा? तो क्या लिखा था, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Zn solid Zn2 plus 1 molar, लिखा? It is combined with SHE to form a cell, a complete cell. It is combined with SHE to form a complete cell. ठीक है, कंबाइन करो, मतलब ये आपका कौन सा सेल है, H+H2Pt, कौन सा सेल है ये, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और वो आपका कौन सा इलेक्ट्रोड है? अच्छा मुझे बताओ, ये एनोड है कि कैथोड है? एनोड को कनेक्ट करो इधर, कैथोड रहेगा आपका SHE, समझा क्या? ये कनेक्ट कर रही हूँ मैं, दिख रहा है क्या? ये कनेक्ट करने को बोला था आपको। ठीक है, लिखा क्या? उसके बाद लिखो द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ब्रैकेट में लिखना E0 सेल बराबर है क्या? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल is measured as देखो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड बताया था, कौन है कैथोड? मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माइनस कैथोड कौन है? एनोड है Zn, समझा क्या? सॉलिड वगैरह यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, C माइनस A करना बोला था, याद है? और वो नॉट सिग्निफिकेंट में A/C चलो देखा। और आपको बताया मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना लेने को बोला, आर्बिट्ररीली टेकन है 0 बोला ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 डाल दो, फिर क्या आएगा देखो,
E cell, E naught cell is equal to 0 minus E naught Zn. So E naught cell is equal to minus E naught Zn. देखो इसमें नेक्स्ट टाइम में बाय मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ द by measuring the EMF of the cell by measuring the EMF of the cell ब्रैकेट में लिखना by using voltmeter bracket close and that EMF of the cell is equal to that EMF of the cell is equal to standard potential for the Zn solid dip in Zn2 plus. ये लिखने का थोड़ा इधर रहना। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हैं या जिसको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल, तब हम दो अलग अलग बीकर में अलग अलग सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें एक साइड में एनोड एक साइड में कैथोड डालते हैं और इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बराबर है ना? बैटरी से कनेक्ट करते हैं इसको और यहाँ पे वोल्टमीटर रहता है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। समझ में आया? ये निगेटिव ये पॉजिटिव कनेक्ट कर लिया बैटरी से। और ये वोल्टमीटर सेपरेटली एनोड और कैथोड का गिन के नहीं देता, वोल्टेज पूरे सेल का देता है। वोल्टमीटर जो लगाया आपने पूरे सेल का पोटेंशियल देगा आपको, पर्टिकुलरली एनोड और कैथोड का दे रहा क्या? नहीं दे रहा, दोनों का मिला के एक साथ दे रहा। समझा? तो अभी मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे सिर्फ Zn2 प्लस ये दिया है, ये बिल्कुल ही नहीं दिया है। समझ में आया? इधर कंबाइन किए हम लोग इसको गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं क्या? एक एनोड दिया है, कैथोड दिया है क्या? तो अभी इसको गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं, हाफ सेल हो गया ये। तो यहाँ पे मैंने अभी एसएचजी कनेक्ट कर दिया, ये पूरा असेंबली ये एसएचजी कनेक्ट कर दिया। समझ में आया क्या? एक ग्राफ डायग्राम बनाई, एक एसएचजी कनेक्ट कर दिया, समझा? तो अभी मुझे बताओ, ये वोल्टमीटर जो पोटेंशियल गिनेगा वो दोनों का मिलकर रहेगा? उसमें से ये तो जीरो ही है। जो टोटल सपोज 12 गिना इसने, ये तो जीरो है, मतलब वो 12 पूरा किसका था? उसका जो गिनने में दिक्कत हो रही थी ना, अकेला था तो इसलिए उसकी बाजू में एसएचजी आ गया जो खुद का पोटेंशियल जीरो रखता है। वो लगाने के बाद जो वोल्टमीटर है गिना, वो तो पूरा Zn का गिना, मतलब मिल गया हम दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, अभी हम देखेंगे डिफिकल्टी। समय है कि हो गया? देखो 26। ठीक है, एडिंग डालो आप लोग। ये डायग्राम में लिख लेना, निकाल लेना। और 8 लाइन छोड़ दी थी तुमने, वहाँ पे आप लोगों को पेज नंबर 109 की फिगर नंबर 5.6 निकालना था। और अभी ये जो मैंने डायग्राम निकाली ना, ऐसे ही कनेक्ट किया Zn से, वो डायग्राम उसी पेज नंबर पे फिगर नंबर है 5.7, इसके बाद ठीक है ना? हाँ, वो यहाँ पे निकाला। अभी 6-7 लाइन छोड़ दो, ठीक है? फिगर नंबर 5.7 के लिए। उसके बाद लेकिन चलो डिफिकल्टी इन सेटिंग एसएचजी। इसमें लिखो, it is very difficult to obtain pure and dry hydrogen gas
Second, the pressure of the hydrogen gas. The pressure of the hydrogen gas cannot be maintained exactly at. Cannot be maintained. The pressure of the hydrogen gas cannot be maintained exactly at 1 atm. 1 atm throughout the measurement. Throughout the measurement. लिखा? Nice. Also the concentration of H plus ion. Also the concentration of H plus ion in the solution cannot be exactly maintained. Cannot be exactly maintained at 1 molar. लिखा? ठीक है, कल नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे इस पे। ठीक है, समझ में आ गया? वोल्ट मीटर जो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लगा है वो पूरे एनोड कैथोड का मिला के बता रहा है। पर अगर आपको एनोड को गिनने को बोला है, एनोड ही है कैथोड नहीं है, तो कैथोड की जगह एसएच लगा दो, पूरे सेल का पोटेंशियल निकालोगे तो एसएच को जीरो लेना ही है। बचा जो है वो एनोड का ही है, सेल का पोटेंशियल जो भी है वो एनोड का है ना? ठीक है, Thank you.